Okay, so here we start a chapter called Introduction to Financial Statement Modeling. This chapter is in fact the last chapter in financial statement analysis. There is a topic called FSA, Financial Statement Analysis. और ये टॉपिक आप लोग को पता होगा, it relates to financial statements. We don't draw the financial statements, we analyze the financial statements. And then they've given this last chapter, Introduction to Financial Statement Modeling. वैसे financial modeling is something जो word generally सबको पता रहता है, especially those who are into the commerce and finance discipline. They know about financial modeling, all about historically Excel stuff, okay, and how do you build a financial model. Historically entry level jobs जो होते हैं ना, which means undergraduates trying to get into investment banking, trying to get into private equity, trying to get into sell-side brokerage firms, उनका entry level jobs जो है वो financial modeling require करता है. But given the pace at which artificial intelligence is taking over, the historical skills which was like very, very proficient in Excel, that is not required for financial modeling at all. What is required is the quality of the inputs. The CFA Institute has already given a couple of chapters in this regard in the equity section. And believe me, there was no need for this chapter over here, because ये already वहाँ कराया जा चुका है. But still they are given because they understand the importance of the same. Also, you may be aware of PSM. Are you aware of PSM? Practical Skills Module. तो जो CFA L1 के एग्ज़ाम के पहले क्लियर करना पड़ता है, और द प्रैक्टिकल स्किल्स मॉड्यूल जो है उसमें भी एक ऑप्शन है कि आप फाइनेंशियल मॉडलिंग वाला PSM कर सकते हो या पाइथन वाला. यूजुअली लोग ये करते हैं एग्ज़ाम देने के बाद, व्हेन द रिजल्ट्स में 1.5 महीना बाकी है ना, दैट टाइम पीपल डू इट. सो आई वुड से द चैप्टर इज समथिंग विच डज नॉट रिक्वायर एनी बेस. किसी का फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास ऑफ द CFA करिकुलम, तो भी वो समझ सकता है. किसी का बहुत सारा टॉपिक्स हो चुका है तो भी इम्पॉर्टेंट है दैट वे. ठीक है, तो इट्स वेरी कॉमन सेंसिकल. सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द टॉपिक and do it in a proper manner, I'm taking the example of a very popular company which is not very great. अब उतना great नहीं बचा जितना early 2000 में था, but still it is the number 1 player in passenger vehicles in India. So which company according to you is number 1 in passenger vehicles in India? Yes, please, you can speak out. Which company according to you is number 1 market leader in passenger vehicles in India? Maruti. Okay, its market share has been falling, no doubt about it, but it remains the leader in passenger vehicle segment in India. I think it got listed somewhere in 2003 or 2004. It got listed. And it has created phenomenal wealth for even shareholders. But the entire Indian masses ka discretionary consumption has changed, because of which its market share has been falling. As a kid, I was never too fascinated with the different types of brands of cars, which I find others are. तो मेरा knowledge हमेशा उतना ज़्यादा हाई-फाई नहीं रहता था, because I was never interested. But otherwise, if we talk a little bit about this passenger car industry, if you can check it out, I think Maruti का share करीब 45% होगा. Check. What is the market share of Maruti in the passenger vehicle segment in India? 40-45%. Roughly guess कर रहा हूँ, I can be wrong. Market share of Maruti in the passenger vehicle segment in India. 38. तो मैं ज़्यादा ही सोच ली हूँ. तो it is 38%, मतलब it is actually falling at a phenomenal pace. 38%. तो 38% stuff. Okay, there is a student called Raghav Gupta. He is asking, will you be teaching any incremental stuff as compared to already uploaded class for me?
So Raghav, for those who are appearing in May, उनको clear cut advice है, they should not do these classes. आपको अभी बैठ के question solving application करना चाहिए rather than classes पे classes. Everything was covered in that uploaded class. Of course नए सिरे से पढ़ाते जाएंगे. That's what I keep on doing. I keep on updating the matter. ठीक है तो आप बोलेंगे लास्ट टाइम तो आपने मारुति का एग्जाम्पल नहीं लिया था उस समय टेस्ला का लिया होगा, अभी किसी और का ले रहा हूँ. तो इट विल कीप ऑन हैपनिंग बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पर्सन हु डज नॉट रिक्वायर मोनोटोनस स्टफ ना. तो आपको छोड़ देना चाहिए क्लास. यू शुड नॉट डू इट जो मे में अपियर कर रहे हैं. ठीक है, नथिंग इंक्रीमेंटल फ्रॉम अ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू. या सो 38% इज द मार्केट शेयर. इफ यू विल चेक, मेरे ख्याल से मारुति का मार्केट शेयर अर्ली 2000 में माइट हैव बीन 70-75%. उस समय कंज्यूमर्स को क्या चाहिए था? नंबर 1 प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर. नंबर 2 फ्यूल एफिशिएंसी. क्या लैंग्वेज बोला जाता है हिंदी में? एक ऐड आता था ना, कितना देता है ये, वो माइलेज. हाँ सॉरी, हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी एंड ऑल्सो द ऑपरेशनल कॉस्ट्स विच आर इनकर्ड, कि मेंटेनेंस का कॉस्ट क्या लगेगा. फ्यूल एफिशिएंसी तो वन कॉस्ट है, बट द अदर कॉस्ट इज द ऑपेक्स कॉस्ट. कि इफ यू बाय अ कार द मेंटेनेंस में, कि भाई हाथी तो नहीं पाल रहे ना. तो इन दैट केस दैट यूज्ड टू बी द टिपिकल वर्जन इन द 90s and 80s इंडिया में, बिकॉज ऑफ विच पीपल यूज टू लाइक मारुति, बिकॉज इट वॉज अ कार जो कि प्राइस अफोर्डेबल था, जिसका फ्यूल एफिशिएंसी बहुत हाई था और जिसमें मेंटेनेंस पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं लगेगा. उस समय ज़्यादा इंटर सिटी ट्रैवल्स होता था कि इंट्रा सिटी. आई सेड इंटर सिटी और इंट्रा सिटी विद इन द सिटी. ओके, ट्रैवल्स होता था. एंड यू नो, thanks to Mr. Gadkari, he has changed the entire infrastructure landscape in India. What marvelous roads we have, especially in that part. We in West Bengal do not experience the same, but Delhi से सारा का सारा जो channeling है towards Agra, towards Jaipur, towards this and that has become stupendous. Per capita income has risen. Number 1. Number 2, income distribution has become more skewed. अगर दोनों वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है. Number 1, per capita income has gone up. और number 2, जो income distribution है, that has become very skewed, such that the rich has become very rich. And therefore, there is a demand now, not for the price point and all that, but for luxury, but for comfort. Because if you are going on a 4-hour, 6-hour drive, luxury matters a lot. And therefore, there has been this complete decline of market share of Maruti. And I am surprised that the board and the management of Maruti, how could they not see this change happening? Because ये change तो हो रहा है ना, structural change. तो उसमें it's like, how do I tell you that somebody was using a BlackBerry, okay, BBM phone, say 2010-11, और उसके बाद जाके वो स्मार्टफोन में माने उसमें चेंज नहीं कर रहे हैं. या somebody is not adopting AI right now, still living in the some other world altogether. तो मारुति उस टाइप का कुछ चीज कर दिया देखा जाए तो. अदरवाइज इतना डिक्लाइन ऑफ मार्केट शेयर इज वन ऑफ अ केस स्टडी विच शुड बी हाईलाइटेड. ठीक है, ऑब्वियसली मैं पूरे क्लास, अपने पास टाइम वाइज औकात नहीं है कि मैं मारुति के ऊपर डिस्कशन कर सकूं. व्हेन वाज इट फॉर्म्ड, व्हेन इट वाज लिस्टेड इन 2003, देन व्हाट वाज द लिस्टेड प्राइस, ओके, वगैरह वगैरह, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मेरे पास इतना समय नहीं है. बट आई जस्ट गिव सम बैकग्राउंड सो दैट यू कैन पिक अप. इसके बेसिस पे देयर इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ओरिएंटेड केस स्टडी विच आई हैव डिजाइंड. क्वेश्चन ओरिएंटेड केस स्टडी विच रिक्वायर्स नो बेस. वंस अगेन बोल रहा हूँ, यानी आप अगर ऐसे बैठे हो ना, चल यार कुछ कॉमन सेंस डिस्कस हो रहा है और सिलेबस भी होते जाएगा. क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा पढ़ाने में आजकल ये रहता है, इंस्टेड ऑफ टीचिंग पीपल, लेट अस गेट इट आउट फ्रॉम देम. मैंने स्टफ आपको पता है, एक प्रॉपर फॉर्म में पूछेंगे तो और आप खुद ही उसका आंसर देने लग जाओगे विदाउट पढ़ाए हुए. तो इट रियली मोटिवेट्स यू एंड इट really sets the tempo of the class. Okay, so let us try the same. Just 1 second. Yes, screen दिखा दो. तो ये सिंगल मल्टीपल चॉइस नहीं होने वाला है, ये केस स्टडी टाइप होने वाला है. एंड आई एम टेलिंग यू, सबको समझ में आएगा. यानी किसी को भी वैसे नहीं सोचना है कि लाइक आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड, या मेरा तो फर्स्ट क्लास है, मेरा फ्रेंड तो कर रहा था 3 मंथ से. ठीक है, कोई मतलब नहीं उससे. इट्स April 2026. You have joined as a sell side research desk
ओके, यू हैव जॉइंड द सेल साइड रिसर्च डेस्क एज अ जूनियर एनालिस्ट. कोई सेल साइड फर्म का एग्जांपल? दरोदा चलेगा, HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, मोतीलाल सिक्योरिटीज, जेफरीज, ये जितने भी ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं दे आर ऑल सेल साइड. आप में से बहुत जन ने जो इस साल क्लास 12 दिए थे मैंने लास्ट ईयर, उन्होंने जब स्टार्ट किया था CFA तो एथिक्स चल रहा था. क्या चल रहा था? एथिक्स. बहुत जन का एथिक्स का क्लास शुरू में हुआ होगा, और उसमें मैंने बाई साइड और सेल साइड को ट्रिमेंडसली ओपन किया था. ठीक है, कि ऑल द म्यूचुअल फंड्स, द PMS, ओके, द AIF, द प्राइवेट इक्विटी फंड्स, ये लोग बाई साइड है बिकॉज ये लोग सीधा पैसा से इन्वेस्ट कर रहे हैं. और जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, ICICI सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल वगैरह, दे आर कॉल्ड सेल साइड नॉट बिकॉज दे आर सेलिंग समथिंग बट बिकॉज दे आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज. दे आर अप्रोचिंग इन्वेस्टर्स टू बाई और सेल सिक्योरिटीज वाया देम, कि भाई हमारे पोर्टल से ट्रेड करो जैसे हम ब्रोकरेज कमाएं. ठीक है, दैट इज सेल साइड. तो यू हैव ज्वाइंड अ सेल साइड रिसर्च डेस्क एज अ जूनियर एनालिस्ट. प्लीज अंडरस्टैंड योर सेल्फ ओनली कि आपका फर्स्ट जॉब अंडर ग्रेजुएशन के बाद मे बी लगेगा इनटू अ सेल साइड माने ब्रोकरेज फर्म एज अ जूनियर एनालिस्ट. ठीक है, तो इट्स वेरी रियलिस्टिक टू यू. योर सीनियर गिव्स यू अ टास्क, build a basic 3-year financial model for Maruti Suzuki India and prepare a valuation input like FCFF. तो अपने को FCFF नहीं पता है, no issues, that's called free cash flow for the firm. What is it called? Free cash flow for the firm. In fact, जिनको नहीं पता उनके लिए और अच्छा बात है, because if you have the habit of digging into words, free cash flow for the firm. A firm generates some cash flow by selling goods and cost incurred से cash flow generate होता है. Some of that cash flow is invested in property, plant, equipment and into working capital, and the part that remains is called free cash flow. Believe me, free cash flow का जो definition है ना वो सबसे बेस्ट है उसके वर्ड में. free cash flow for the firm, कि firm जो cash generate कर revenue minus cost, ठीक है, obviously not depreciation, because depreciation तो non cash है ना. तो जो cash generate कर रहे हैं वो cash generate करने के बाद उसको spend करना पड़ेगा into expansion, property, plant, equipment. उसके बाद जो बचेगा that's called free cash flow. फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म. तो नोबडी शुड बी वरीड कि क्या ग्रेट फॉर्मूला एंड क्या नहीं है. ओके, ऑब्वियसली इसके आगे पढ़ने के पहले एक बता दें, व्हाट इज आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. प्रिडोमिनेंटली इंडिया में द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ CFA चार्टर होल्डर इज टू एडवाइज क्लाइंट्स इनटू विच स्टॉक टू बाय, विच स्टॉक नॉट टू बाय. ओके, विदाउट गोइंग इनटू सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज. इन ऑर्डर टू एडवाइज विच स्टॉक टू बाय, विच स्टॉक नॉट टू बाय, आपको उस स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ेगा. द स्टॉक इज वर्थ हाउ मच अकॉर्डिंग टू यू. द स्टॉक इज वर्थ, आज सुबह जेफरीज का रिपोर्ट है कि इंडियन होटल्स इज वर्थ 900 अकॉर्डिंग टू देम. व्हाट इज इट वर्थ? 900. द स्टॉक प्राइस इज लोअर, इट्स 700 समथिंग परहैप्स. तो इन दैट केस दे हैव गिवन अ बाय रेटिंग. व्हाट रेटिंग? बाय रेटिंग. तो जेफरीज इज अ सेल साइड ब्रोकरेज फर्म. इट इज सेइंग दैट द टारगेट प्राइस इज 900, इट इज सेलिंग एट 700 समथिंग, देयरफॉर इट्स अ बाय रेटिंग. अंडरस्टूड? किसको बाई करना चाहिए, रेकमेंड कर रहे हैं. तो वो जो 900 आया, 900, वो 900 किससे आया? वैल्यूएशन से आया. पर वैल्यूएशन के लिए क्या चाहिए? मॉडल. वैल्यूएशन के लिए क्या चाहिए? मॉडल. मॉडल के लिए क्या चाहिए? रिसर्च. वैल्यूएशन रिक्वायर्स मॉडल, मॉडल रिक्वायर्स रिसर्च. इस पूरे के पूरे चक्कर में एक्सेल को बीच में मत घुसाना. ठीक है, तो दैट इज अ साइड स्टेप सब अफेयर. वो जानना है, बट उसको अगर तुमने मैग्नीफाई कर दिया एक्सेल, तो इन दैट केस यू विल नॉट रीच एनीवेयर. ठीक है, तो एक्सेल पार्ट को ही मैनेज कर लेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस में, उसको बीच में नहीं घुसाएंगे. ठीक है, टू सम एक्सटेंट, बट अदरवाइज लेट्स नॉट ब्रिंग द एक्सेल वाला पार्ट ओवर हियर. द अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट इज रिक्वायर्ड. आई होप आई एम कम्युनिकेटिव. ठीक है ना. स्टार्ट विद द रेवेन्यू फोरकास्ट. वॉल्यूम प्लस प्राइस मिक्स प्लस फॉरेक्स. क्या मारुति आपके हिसाब से एक्सपोर्ट करता होगा कार? ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करता है, और खासकर अपने नेबरिंग कंट्रीज में तो जोर के एक्सपोर्ट करता होगा. बांग्लादेश, श्रीलंका, क्या पाकिस्तान, आई डोंट नो अलाउड है कि नहीं अलाउड है. ठीक है, बट अदरवाइज अपने नेबरिंग कंट्रीज में मलेशिया एंड ऑल, इट मस्ट बी एक्सपोर्टिंग. तो मारुति का मैं गेस कर रहा हूँ, उसका जो एक्सपोर्ट शेयर है वॉल्यूम में, रेवेन्यू में, वो मेरे ख्याल से करीब मारुति के सेल्स का 5-10% एक्सपोर्ट से आता होगा. फिर से प्लीज चेक करो, कोई हर्ज नहीं. इतना बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव को लेकर मत बैठना प्लीज, कि कौन चेक करेगा. मूव योर बॉडी प्लीज, चेक व्हाट इज द मिक्स
of Maruti sales in terms of domestic sales versus export sales. Mix of Maruti sales in regards to domestic sales versus export sales. Domestic sales versus export sales. 87% domestic बोल रहा है एक स्टूडेंट और 13% एक्सपोर्ट. ओके, आज लाइव स्टूडेंट्स समीर, सुधांशु, ये लोग कमती जोश में दिख रहे हैं. वी आर नॉट गेटिंग रिप्लाईज फ्रॉम देम. माइलेज का रिप्लाई मिला था, तो आप लोग को भी यही फिगर्स दिख रहे हैं करीब. तो 87% डोमेस्टिक सेल्स है, 13% एक्सपोर्ट सेल्स है. और अगर एक्सपोर्ट सेल्स है तो उस केस में फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज करेंसी, कम्स इनटू कंसिडरेशन. Some people have been recently doing classes of monetary policy. Therefore, I have the right to ask, and others who have not been doing classes का first class उनके भी common sense basis पे, as an exporter, मारुति अगर export कर रहा है, it would love option number 1, rupee depreciation, option number 2, rupee appreciation, option number 3, doesn't matter, depreciation. जो भी exporters है, they would love home currency to depreciate. ठीक है? If they are going to get in terms of dollars, they want $1 to become 90 से 95 से 100. ठीक है? तो all the exporters would love home currency to depreciate. This is considered to be ABCD. Okay? Not of finance but of common sense business life. Understood? In case किसी को भी ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ मैंने बोला वो थोड़ा सा अटक रहा है, नहीं जा रहा है, मेक अ पॉइंट इन योर माइंड और समवेयर दैट मैं इस पे वापस से रिविजिट करूंगा या करूंगी कि सर ने बोला एक्सपोर्टर्स को होम करेंसी डेप्रिसिएशन से फायदा क्यों होता है. अगर आपको लगता है आपको क्लियर नहीं है, आपको क्लियर कर लेना चाहिए. मैं अभी उसके अंदर नहीं जा रहा हूं बिकॉज मेरे को दिख रहा है लार्जर ऑडियंस का क्लियर है. ठीक है ना? तो यहां क्या लिखा है, मारुति का रेवेन्यू फोरकास्ट करते समय डोमेस्टिक फोरकास्ट में फॉरेक्स काम नहीं आएगा. डोमेस्टिक फोरकास्ट में फॉरेक्स काम नहीं आएगा. ओके, बट जो आप फॉरेन फोरकास्ट करोगे कि एक्सपोर्ट सेल्स में, उस पर तो फॉरेक्स भी काम आएगा कि रूपी का फोरकास्ट क्या है, रूपी कितना डेप्रिशिएट होने वाला है. करेक्ट है? देन फोरकास्ट COGS ब्रैकेट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर. ओके, प्लीज थिंक अबाउट द PL अकाउंट. रेवेन्यू है, रेवेन्यू के बाद क्या होगा? COGS. ये COGS बोल दिया ऑपेक्स, वैसे और एक खर्चा होता है SGA. व्हाट इज SGA का फुल फॉर्म? सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर. तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, SGA सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर. मैं कभी कभी बीच में कुछ बोलता हूं, उसका रीजन क्या है ना, व्हेन आई एम टीचिंग आई नो देयर आर अ वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग, सम हु आर सुपर पैशनेट अबाउट इक्विटी, सम हु आर जस्ट लुकिंग एट इट एज एन एग्जामिनेशन. आई एम रिस्पेक्टिंग ऑल. ठीक है, मेरा सबके तरफ रिस्पेक्ट है. अपना क्विंट एसेंशियल पर्पस है एग्जामिनेशन को फ्लाइंग कलर्स में फर्स्ट अटेम्प्ट पे पास करना, बट लार्जर पर्पस है ग्रेट करियर बनाना. ठीक है ना, जो कई बार भूल जाते हैं. कल का बजाज फाइनेंस का जो कॉन कॉल था रिजल्ट्स के बाद, कॉन्फ्रेंस कॉल, उसमें देयर CEO हैज मेड अ बिग स्टेटमेंट अबाउट AI कि बजाज ऑटो का था शायद, बजाज ऑटो का या बजाज फाइनेंस का, आई डोंट रिमेंबर, जिसमें ही सेइंग दैट किस तरह से लास्ट क्वार्टर में या लास्ट ईयर में बजाज को AI से फायदा हुआ है. विच मीन्स क्या हो रहा है, जो भी कॉल्स हो रहे हैं कस्टमर्स के, दोज कॉल्स आर गेटिंग रिकॉर्डेड एंड दोज रिकॉर्डिंग्स आर गेटिंग ट्रांसक्राइब्ड. दोज रिकॉर्डिंग्स आर गेटिंग ट्रांसक्राइब्ड. दोज ट्रांसक्रिप्शंस आर लोडेड इनटू एनालिटिक्स. Those analytics are then used to understand what the customer exactly wants and to automate sales and to get referrals and all that. I didn't read it properly, मेरे को याद नहीं होगा. Around 10% of the sales of the last quarter is on account of that AI का mingling, and that's going to extrapolate to higher levels. मैं क्लास के बाद शेयर करूंगा. I'll share the snapshot, मैंने just एक छोटा पैराग्राफ रिगार्डिंग बजाज ने क्या शेयर किए. That just goes to show that जो लोग इनोवेट और अडेप्ट नहीं करेंगे वो लोग कहाँ रह जाएंगे. Which one example is Maruti. Understood? Which have decided that हम लोग को पता है इंडिया कैसा है. ओके, इन लोग का यही डायलॉग, हम लोग को पता है इंडियन मासेस क्या चाहता है, आप लोग को सिखाने का जरूरत नहीं है, बट इट इज रिक्वायर्ड टू बी टॉट. ठीक है. तो मेरे को क्यों याद आया ये अचानक से, बिकॉज COGS ओपेक्स में, मैंने बोला ओपेक्स में SGA भी आएगा, सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, और उसके अंदर R&D भी आता है. क्या R&D?
R&D एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ेगा ना, फॉर द पर्पस ऑफ रिमेनिंग इन द फोर फ्रंट, बट दैट R&D एक्सपेंडिचर आप नहीं करोगे सोच के कि अपना मार्जिन ज्यादा रहे, दैट स्टुपिडिटी, ठीक है, विच वंस अगेन मारुति हैज नॉट डन. देन वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट, केपेक्स फोरकास्ट एंड कैश फ्लोज. तो ये सारा का सारा फोरकास्ट करने बोल रहा है, रेवेन्यू फोरकास्ट, COGS फोरकास्ट, वर्किंग कैपिटल, कैपेक्स एंड कैश फ्लोज. कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो लोग क्लास 11-12 में नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है? ओके, तो इन माई क्लासरूम देर आर अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स, 3-4 स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो यहाँ पे देखो क्या जोश चढ़ा है. प्रिया रंजन ने पूरा का पूरा जो बजाज फाइनेंस का CEO है राजीव जैन, उनका पूरा मैं बोला ना शेयर करूंगा, वो डाल दिए. तो प्रिया मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ अभी, ना ही बाकी स्टूडेंट्स रीड कर पा रहे हैं, ठीक है, बट थैंक्स अ लॉट फॉर द एक्टिविज्म. एक बार नॉक करना ना पीछे डोर को. So I'm continuing with a louder voice, but this particular mic is not functioning, which my staff shall look into. So जो लोग नॉन कॉमर्स के हैं वो तो अरे ये जो नॉन कॉमर्स के हैं वो तो ठीक है, पर जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, अकाउंट्स वाले, उनको याद होगा फाइनल अकाउंट्स, ठीक है ना. और फाइनल अकाउंट्स जब बनाते थे और जब बड़ा सम आ गया फाइनल अकाउंट्स का, तो अलग अलग लोगों का स्टाइल होता है डिपेंडिंग अपॉन कहाँ से क्या ट्यूशन लिए या वॉटेवर. एक होता है पहले पीएल बनाएंगे फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, और एक होता है पहले के पहले पीएल और बैलेंस शीट तो खोल देंगे और सारा स्केड्यूल्स भी खोल के रखेंगे, फिर जो आइटम ट्रायल बैलेंस में आता रहेगा उसको पोस्ट करते जाएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेरे को तो 20-25 साल हो गया होगा वो काम किए हुए, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट आई एम स्टिल रिमेंबरिंग दोज डेज वेयर अकाउंट्स यूज्ड टू बी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज दैट वाज एटलीस्ट नंबर क्रंचिंग ओरिएंटेड, ठीक है. तो वैसे ही ये जो फाइनेंशियल मॉडलिंग है, ऑल्दो इट इज डन ऑन एक्सेल, वो सेम तरीके से होता है. You have to prepare the PL, you have to prepare the balance sheet, you have to prepare the cash flow statement, okay, and side में you are preparing all the schedules. एक बार मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, let's see आपका कंफर्ट लेवल क्या है. आप स्टार्ट करते हो रेवेन्यू स्केड्यूल से. कौन सा स्केड्यूल? रेवेन्यू. अगर अपने बहुत ही से मारुति का बात करें तो मारुति इज नोन फॉर सेलिंग सेडान एंड हैशबैक. ये दोनों गाड़ी में ही उसका मेन है, हैशबैक और सेडान. दीज आर द टू कार्स इट सेल्स. मारुति का SUV है क्या? देखो नहीं पता है, क्या नाम है? ग्रैंड विटारा. ओके, सो SUV है. MUV है क्या? SUV तो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल हो गया, इनकेस मेरे जैसे लोग बैठे हैं, और MUV जो है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, ऐसा कुछ बोलते होंगे या. सो इफ यू विल चेक एंड यू शुड, अगर आपको इंटरेस्ट आए कि इंडिया में SUV और MUV का जो शेयर है ना, दैट वाज मे बी 20% और 15-20% 15 साल पहले SUV MUV लिया नहीं जाता था, और वो जो ग्राफ है वो बढ़ के इट मस्ट हैव क्रॉस्ड 55% नाउ, एंड जो सेडान प्लस हैशबैक है उसका 70-80% से इट हैज़ फॉलन टू लेस देन 50% मेरे ख्याल से. द ग्राफ इज जस्ट ऑपोजिट, कि तो जो मारुति सेल करता था उसका अब लोग वो बाई नहीं कर रहे हैं, और SUV MUV लोग बाई कर रहे हैं. तो वट एवर इट इज, इफ वी फोरकास्ट द रेवेन्यू, यू विल हैव टू यू कैन फोरकास्ट इट बेस्ड ऑन, क्या बोलते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ये वाला यूज करें. हेलो 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 हेलो, ठीक है, 1 सेकेंड. Okay, so if you forecast the sales of Maruti, then in that case CFA Institute has said that it is always better if you do 2 types of forecast.
One is consolidated forecast, the other is segmented forecast. Consolidated forecast, segmented forecast. Consolidated forecast का मतलब हुआ, मैंने मारुति का सेल्स देखा लास्ट 5 साल का, क्या सेल्स है. I looked at the CAGR, if you have heard the name. What is the full form of CAGR? Compounded average growth rate. It's like अगर उसका पहले सेल्स was 40,000 crores और 5 साल बाद the sales is 60,000 crores. You put 40,000 plus minus PV, 60,000 FV, NS5 and CPT I by Y. 40,000 बन गया 60,000 like compound interest. So in that case you calculate I by Y. It's like 40,000 into 1 plus G power 5 equal to 60,000 solve for G. Understood? Which we never solve, we do it by the calculator Excel. So that's CAGR निकाला हमने. CAGR suppose आया 7.2%. मन से बोल रहा हूँ 7.2%. So that was the past growth rate of sales. आपको लगता है वो growth rate further decline करने वाला है? आपको लगता है किसी कारण से? We'll talk about the कारण. तो accordingly 6% growth होगा. तो आपने next year का forecast कर दिया कि this would be the next year का forecast. Correct है? Segment wise forecast क्या होते हैं? मारुति का आप डोमेस्टिक का अलग फोरकास्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट का अलग फोरकास्ट. आप मारुति का सिडान का अलग फोरकास्ट कर रहे हो और हैशबैक का अलग फोरकास्ट. सेगमेंट वाइज अलग अलग फोरकास्ट. तो दैट्स कॉल्ड सेगमेंट वाइज फोरकास्ट. सेगमेंट वाइज फोरकास्ट का पर्पस है टू जस्ट गिव अ कॉन्फर्मेशन कि हमारा कंसोलिडेटेड फोरकास्ट बहुत ही अलग तो नहीं है ना. लेट मी कम टू द इजी एग्जांपल. वी आर ऑफरिंग कोर्सेज फॉर CFA, FRM, CA, सम स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स. तो इन दैट केस एक होता है कि वी वे फोरकास्ट आवर सेल्स बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड कि लास्ट ईयर क्या सेल्स था से 40 करोड़. तो इन दैट नेक्स्ट ईयर सेल्स क्या होगा. दूसरा होता है CFA L1 का सेल्स क्या होगा, L2 का क्या होगा, L3 का क्या होगा, FRM पार्ट 1 पार्ट 2 CA वगैरह वगैरह. और दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी तो नहीं होना चाहिए ना. ये मल्टीपल चॉइस में आएगा इसलिए फोकस कर रहा हूँ. दे विल आस्क व्हाई डू वी डू द सेगमेंटेड फोरकास्ट. सेगमेंटेड फोरकास्ट प्रोडक्ट वाइज और रीजन वाइज और ज्योग्राफी वाइज इज सपोज टू कंफर्म द कंसोलिडेटेड फोरकास्ट का फिगर को. इज सपोज टू कंफर्म कि दोनों तरह से जो आंसर आए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलेट. ठीक है. दैट शुड नॉट बी मेजरली डिफरेंट, अदरवाइज देयर इज सम फ्लॉ. ठीक है. तो ये पहला बात मैंने बताया है जो कि एग्जाम में टेस्टेबल अभी तक इस चैप्टर से. द फर्स्ट थिंग व्हिच आई हैव सेड कि सेगमेंटेड फोरकास्ट. अंडरस्टूड. और वैसे तो मल्टीपल चॉइस भर के करेंगे अपने. सो रेवेन्यू फोरकास्ट सबसे पहले होता है. रेवेन्यू फोरकास्ट के बाद आपका सेल्स आ गया. ठीक है. सेल्स आने के बाद यू विल फोरकास्ट COGS. यू विल फोरकास्ट COGS. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. यू विल फोरकास्ट SGA. तो आपका PL अकाउंट एबिडा तक बन गया. कहां तक? एबिडा. एबिडा का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन. ओके. तो बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर टैक्सेशन प्रॉफिट आ गया है. सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस SGA माइनस R&D वॉटएवर. तो अपना एबिडा आ गया है. ओके. दैट्स कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मेट्रिक बिकॉज एबिडा के बाद यू कम टू द अदर पार्ट्स ना लाइक डेप्रिसिएशन. Okay, which is based on historical figures, so less relevant. You come to interest, which is a financial activity, not your operations, taxation and all that. So EBITDA is considered to be an important milestone in the PL account. ठीक है. तो EBITDA आपका forecast आ गया. अब आप बैलेंस शीट वाइज फिक्स्ड एसेट का स्केड्यूल बनाओगे. किसका स्केड्यूल? फिक्स्ड एसेट का स्केड्यूल. मैंने अपना वर्किंग नोट हो गया, अपने पुराने जमाने का वर्किंग नोट. इसको ये लोग स्केड्यूल बोलेंगे. और फिक्स्ड एसेट ओपनिंग क्या था, कितना बाई करेंगे कैपेक्स. ठीक है. कितना डेप्रिसिएशन होगा, तो अकॉर्डिंगली क्लोजिंग क्या बचेगा. करेक्ट है. तो ओपनिंग, कैपेक्स, डेप्रिसिएशन एंड यू हैव द क्लोजिंग. तो इससे अपना फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट के लिए आ गया. द कैपेक्स विच यू गेट विल गो टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट. विच स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट एज CFI. एज फुल फॉर्म प्लीज. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. 3 एक्टिविटीज होता है. ऑपरेटिंग जो अपना धंधा है, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में CFI आउटफ्लो हो जाएगा. डेप्रिसिएशन विल कम एबिडा के बाद. एबिडा तक रुके थे ना, तो डेप्रिसिएशन कम्स एबिडा के बाद. ये पूरा वही हो रहा है एक तरह से जो अपने करते थे फाइनल अकाउंट्स, वैसा ही कि 4 चीज एक साथ चल रहा है एंड वी आर ट्राइंग टू रिलेट टू इट. तो आपका अब आ गया EBIT. क्या आ गया? EBIT. एक बार टैक्स रेट का झमेला नहीं करते हैं बिकॉज पूरा डाइवर्ट हो जाएगा. तो टैक्स रेट मान लेते हैं, वट एवर एवरेज टैक्स रेट पास्ट में था ले लिए. ठीक है. तो टैक्स रेट है अपने पास. अपने को इंटरेस्ट चाहिए. क्या चाहिए? इंटरेस्ट. वी हैव टू प्रिपेयर द डेट स्केड्यूल. विच स्केड्यूल? डेट स्केड्यूल.
तो डेट स्केड्यूल तो लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में विच आर द लायबिलिटीज वी हैव, डेट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, व्हाटएवर डेट वी हैव, वो डेट का क्या इंटरेस्ट रेट है, उसका डेट का कुछ रिपेमेंट ऑब्लिगेशन इस साल है क्या, वो तो पता होगा आपको इंडेंचर से, व्हाटएवर से, डिबेंचर्स वगैरह है तो, और कितना डेट और रेस करने वाले हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन, उसका प्लान होगा। तो बेस्ड ऑन दैट यू प्रिपेयर द डेट स्केड्यूल, विद द हेल्प ऑफ द डेट स्केड्यूल यू गेट लायबिलिटी साइड में डेट कितना आएगा एंड यू आर एबल टू गेट द इंटरेस्ट एक्सपेंस। डेट जो एक्स्ट्रा रेज करेंगे, एक्स्ट्रा डेट रेज करेंगे, वेयर डज इट कम इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट? डेट जो रेज करेंगे, लोन लेंगे, वेयर डज इट कम इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट? CFF। कहाँ पे? CFF। फाइनेंसिंग है ना, फाइनेंसिंग माने पैसा उठाना, इन्वेस्टिंग माने पैसा लगाना, ऑपरेशन माने धंधा करना, सिंपल है ना, लीव द इंग्लिश। फाइनेंसिंग माने पैसा उठाना, इन्वेस्टिंग माने पैसा इन्वेस्ट करना प्लांट ये सब में, और ऑपरेशन माने धंधा करना, माल बेचो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगाओ, सिंपल है, कुछ हाई फाई का बात ही नहीं है कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशंस या फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो आपका यहाँ पीबीटी आ गया, अब इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स लगा दिए, पैट आ गया, करेक्ट है। डिविडेंड जो भी कंपनी देने वाला है बेस्ड ऑन द पास्ट एंड ऑल दैट, वो डिविडेंड वंस अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ला जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, उससे रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगा, वो बैलेंस शीट में चल जाएगा। माने मोर और लेस यू अंडरस्टैंडिंग कि द स्टफ। इसमें एक चीज रह जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में CFO का बात नहीं हुआ, किसका? CFI इज द इन्वेस्टिंग, जो कैपेक्स कर रहे हैं, CFF इज द बोरोइंग, जो बोरो कर रहे हैं, CFO इज जो धंधा कर रहे हैं ना, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इन कैश फ्लो टर्म्स। इन व्हाट? कैश फ्लो टर्म्स। यानी हमने जो सेल्स दिखाया PL में वो तो कलेक्ट नहीं हुआ, कितना कलेक्शंस होने वाला है, दैट इज द CFO का फर्स्ट आइटम, कैश टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स, कैश टू बी पेड फॉर रॉ मटेरियल्स एंड ऑल दैट, COGS का भाई, कैश टू बी पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कैश टू बी पेड फॉर जनरल एक्सपेंसेस, SGA का भाई। माने कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट तो सेम है, केवल वो कैश बेसिस पे और वो अक्रूवल बेसिस पे था। डेप्रिसिएशन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, टच नहीं करेंगे अपने, डेप्रिसिएशन ना गया ना आया, तो CFO वैसे निकलेगा। CFO ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट मेथड से भी निकलता है, जहाँ पे पैट को लेके एडजस्ट करते हैं, सब पीपल में बी अवेयर अबाउट इट इन केस की है, बट अदरवाइज डायरेक्ट इज मोर इंट्यूटिव। सो इस तरह से अपना फाइनेंशियल मॉडल बनता है, एंड लास्ट में यू नो द ग्रेट थिंग, बैलेंस शीट मस्ट टैली। ये चीज इतने सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स को बर्बाद कर दिया है ना, आई कांट एक्सप्लेन। Those people who are earning money in the markets, very very important for you to know beforehand, those people who are earning money in the markets, they are not doing this. Those who are serving others, they are doing this. जो लोग को कमाना है उसको तो इस पे टाइम वेस्ट करेगा नहीं। जो मैंने बोला ये स्केड्यूल बना दिए, बना दिए, यही बनाने के लिए तुमको लगता है अब तुम वॉरेन बफेट बन जाए क्या? So one of my best students, okay, who's running a PMS, Ironclad Asset Management, Krishna Killa, what he does, listen carefully because very important, कि सर टाइम कैसे बचाना है अपना। He will just forecast revenue. What? Revenue. Revenue के बाद he will forecast margin, माने सब खर्चा काटने के बाद मार्जिन क्या बचेगा। तो सीधा रेवेन्यू से पैट पे आ गया। कहाँ आ गया? पैट पे, मार्जिन। ऑफ कोर्स मार्जिन फोरकास्ट करने में अगला सारा बुद्धि लगाया अपना, कॉमन सेंस, मार्जिन, और मार्जिन के बाद मल्टीप्लायर, मार्जिन के बाद मल्टीप्लायर, बिकॉज द शेयर प्राइस इज अ सर्टेन मल्टीपल ऑफ EPS, द शेयर प्राइस इज अ सर्टेन मल्टीपल ऑफ EPS। तो शेयर का दाम जो है, अगर अपने बोले कि क्या बोलते हैं 900, मैंने किसका फोरकास्ट बोला शुरू में, टारगेट आया है जेफरीज का, इंडियन होटल्स। तो अगर अर्निंग्स पर शेयर इंडियन होटल्स का अर्निंग्स पर शेयर इज say 80 or whatever, and if it is supposed to be trading at 700, so it has a PE multiple that way of 9 point something times, 80 into 9 point something। तो in that case काम तो आता है PE multiple into EPS। EPS के लिए मार्जिन चाहिए, मार्जिन अप्लाइड ऑन व्हाट? सेल्स। तो he uses only 3 things, revenue, margin and what? Multiple। revenue, margin and multiple। और इसमें भी पूरा कॉमन सेंस सोचेगा सारा चीज। तो इफ यू हैव हर्ड अ वर्ड कॉल्ड पार्सिमोनियस, हैव यू हर्ड अ वर्ड? ये वर्ड प्लीज बहुत सुनने को मिलेगा आपको आगे जाते हुए। उसका वर्ड हो गया सिंप्लिसिटी, बट द बेटर वर्ड इज पार्सिमोनियस। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपने लाइफ को नहीं करना है बाय हैविंग दिस दैट ऑन आवर शोल्डर्स। तो घर से निकलते हो, ये भी लेके निकल रहे हो, 2 वाटर बॉटल्स, ठीक है, वगैरह, यू अंडरस्टैंडिंग। इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को नहीं करना है, सिंपल रखना है, सो दैट वी आर लाइट एंड वी कैन फोकस।
That is what everybody does who is actually into fund management. They don't do this. But unfortunately at your age, okay, अंडर ग्रेजुएशन एज में एक बार 3 स्टेटमेंट मॉडलिंग बनाना आना जरूरी है, एंड दैट टू इन द प्रेजेंट एआई फॉर्मेट. अभी जो एआई है वो नहीं कि बना बना के एक्सेल शीट, एआई के हेल्प से. ये जो एंथ्रोपिक ने अभी अनाउंस किया था, ठीक है, तो उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडल है 3 स्टेटमेंट का, वो 5 मिनट में बन जाता है. 5 मिनट्स में यू विल बी एबल टू क्रिएट ऑल दिस 3 जो बोल रहे थे, सारा स्केड्यूल के साथ सारा बन गया. एंड आई विल इंश्योर दैट अ क्लास इज टेकन ऑन द सेम विच शोज यू, देखो 5 मिनट्स में कैसे बन गया. बट उसमें दिक्कत की बात क्या है? अजम्पशंस. दिक्कत क्या है? रेवेन्यू का ग्रोथ तुमने क्या लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तुमने कैसे फोरकास्ट किया, डेप्रिसिएशन का कैसे फोरकास्ट किया, वर्किंग कैपिटल का कैसे फोरकास्ट किया, वो जो अजम्पशंस वाला पार्ट ना कैसे किया. एंड बिलीव मी, यंगस्टर्स को उससे मतलब ही नहीं है. यंगस्टर्स विल गो ऑन देयर लिंक्डइन एंड दे विल फाइंड अ फ्रेंड ऑफ देयर्स विल पोस्ट अ रिपोर्ट on a particular company and then wow man what a report, because there is a book written by somebody and you say wow क्या book है, कैसे देख रहे हो उसका कवर देख के. So I was telling you that 3 statement modeling से forecasting से investment नहीं हो रहा है. Nobody does investment based on that. They don't prepare 3 statement, they don't mind that the balance sheet matches. और वैसे balance sheet match करने के लिए लास्ट पार्ट बोलना भूल गया, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट से चेंज इन कैश आएगा ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में क्या आएगा? चेंज इन कैश. वो चेंज इन कैश जो है वो आपके बैलेंस शीट से कैश बैलेंस मैच होना चाहिए. तो दिस इज द लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग वाला पार्ट, जिसके लिए अपने एक एडिशनल क्लास रख लेंगे, ठीक है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, ठीक है, जिसमें एआई वाला पार्ट भी दिखा देंगे, ठीक है. बट अदरवाइज यू विल हैव टू कंटेंट विद क्री का वो सेपरेटली हो जाएगा. इंस्टीट्यूट ने चैप्टर लिखते समय एक्सेल पे फोकस नहीं किए, ठीक है, उन्होंने फोकस किया आप फोरकास्ट कैसे करोगे हर एक चीज को. दैट्स द गुड पार्ट, ठीक है. तो फोरकास्टिंग पे फोकस किया. लेट्स कंटिन्यू. तो अपने को ये सब फोरकास्ट करना है. Maruti is India's largest passenger vehicle maker. Over the last 2 years, it has benefited from. एक मिनट, जो नोट शेयर होगा ना आपसे आज का ऑन द ड्राइव, मैं क्या लिखाऊंगा मेरे को पता नहीं है, बट अगर नहीं लिखाया तो जो नोट शेयर होगा इसमें ये जो पूरा स्टेप्स बोला था ना कि यू स्टार्ट विद द रेवेन्यू शेड्यूल, देन गो ओवर देयर, देन गो ओवर देयर, देन इस तरह बैलेंस करो, वो सब लिखा हुआ रहेगा. वेरी शॉर्ट, ओके, हैंड रिटन एंड राइटिंग में. एक बार रेफर जरूर कर लेना. जैसे यू कांट थिंक अबाउट सब बोले थे तो ध्यान तो है ही नहीं, चला गया वो, वैसा कुछ नहीं है. So Maruti is India's largest passenger vehicle maker. Over the last 2 years, it has benefited from strong demand in SUVs and premium hatchbacks, better product mix, moderating commodity inflation, steel, aluminium. इससे मारुति को क्यों फायदा हो रहा है? इनपुट कॉस्ट. मारुति के लिए तो ये इनपुट कॉस्ट है ना, स्टील, एल्यूमिनियम एंड ऑल दैट. So if they are moderating, in that case input cost go down. If input cost go down, the margins will be swelled up. Common sense की बात है. Is it okay? जो better product mix बोला है, better product mix. I am trying to say that I am selling a CFA program at a certain fee, say 40. I am selling a CA program at a certain fee, 10. CFA program at 40, CA program at 10. If you find that मेरे हम लोग के फाइनेंशियल्स में CFA का प्रपोर्शन ज़्यादा बढ़ रहा है CA के मुकाबले, तो आवर एवरेज सेलिंग प्राइस विल राइज और फॉल. राइज. CFA सेल कर रहा हूँ 40 में, CA सेल कर रहा हूँ 10 में. इफ द प्रोडक्ट मिक्स मूव्स टुवर्ड्स CFA, तो इन दैट केस द एवरेज सेलिंग प्राइस विल राइज ना. यू अंडरस्टैंडिंग? ASP, नथिंग इज ग्रेट, इट्स ऑल कॉमन सेंसिकल, ठीक है. और जो फर्स्ट वाला पार्ट पे तो अपने सहमति नहीं था, तो मैं जानबूझ के जल्दी रीड कर दिया. स्ट्रॉन्ग डिमांड इन SUVs. तो मारुति कहाँ SUVs ज़्यादा बना रहा है और उसका डिमांडेड है, हो रहा होगा तो मेरे को पता नहीं डेटा, ठीक है. तो बेटर प्रोडक्ट मिक्स आप समझ गए कि मारुति का वो कार्स जिनमें ज़्यादा प्राइसिंग है वो ज़्यादा बिक रहा है, ये बोल रहे हैं. ओके, राइट. अप मॉडरेटिंग कमोडिटी इन्फ्लेशन, दिस इज ओके. There is an LOS number D in this chapter which talks about please explain the impact of inflation or deflation on your financial model. फाइनेंशियल मॉडल में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का क्या इफेक्ट होगा प्लीज बताइए. उसका LOS है, ठीक है. उस पर आपने एकदम तुरंत सही बोला कि सर स्टील एल्यूमिनियम का प्राइस गिरने से इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा तो मार्जिन्स विल व्हाट गो अप. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर दिस थिंग. एक्सपोर्ट पुश, बट एक्सपोर्ट्स आर स्टिल अ स्मॉल शेयर ऑफ द डोमेस्टिक मैनेजमेंट गाइडेंस, ठीक है. तो अपना देखे तो अपने 15% अभी है. इंडस्ट्रियल डिमांड इज स्टेबल, प्रीमियमाइजेशन कंटिन्यूज, ठीक है. Some people who can really product differentiate, they can charge a premium. Competition is rising.
दे आर, वी नो दैट, इवन टेस्ला, BYD, अभी BYD का कार्स कैलकाटा में दिख रहे हैं. ओके, इनपुट कॉस्ट कैन राइज इफ ग्लोबल कमोडिटीज रीबाउंड. ये रिस्क है, इनपुट कॉस्ट कैन राइज. FX risk, some imports are USD linked, exports earn forex, तो forex exposure is there. Exhibit A, अब ये Exhibit A दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा. मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, देख लो एक बार. यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा, एंड कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए. नहीं है तो इन दैट केस फोन पे जो कैलकुलेटर है वो यूज कर लो, और वो भी नहीं है तो सोचो कैट का एग्जामिनेशन में बैठने वाले वर्बल कैलकुलेशन से आंसर देना. FY 2024, ए का मतलब क्या है? FY 2024 ए का मतलब क्या है? एक्चुअल. FY 2025 ए एक्चुअल, बिकॉज अपने खड़े अप्रैल 26 में, यू सॉ दैट. तो 2025 हो चुका ना, मार्च 25 हो चुका, ठीक है. तो इन दैट केस ये एक्चुअल है, और अपने जो फोरकास्ट करेंगे FY 2026 उसके सामने ए लिखेंगे या ई एस्टिमेट. ओके, सो इन दैट केस आपको डोमेस्टिक वॉल्यूम दिख रहा है, आपको एक्सपोर्ट वॉल्यूम दिख रहा है, आपको टोटल वॉल्यूम दिख रहा है, मिलियन यूनिट्स, नंबर ऑफ कार्स सोल्ड, एवरेज सेलिंग प्राइस. ओके, तो इन दैट केस अजम्पशन दिया हुआ है जिसका मैं बात कर रहा था. अजम्पशन है 2026 पे ध्यान देना. Volume is going to grow up by 8%. Price due to the mix is going to rise by 5%. Forex का कोई इफेक्ट नहीं है. Find out the total revenue in 2026. Take your time. 2026 में आपको total revenue बताना है. TR, total revenue, P into Q. 100% possible आपके लिए बताना. मैं बता रहा हूँ, gain yourself confidence, have a nice day, कि अच्छे से क्लास से निकलो. जब निकलो तो क्या अच्छा दिन गया. I was able to reply. ठीक है, आपको 2026 का रेवेन्यू बताना है. 2027 और 28 को मत देखना. टेक योर टाइम, और कोई हड़बड़ी नहीं है. यू वांट टू राइट समथिंग ऑन द कॉपी एंड ऑल दैट, डू दैट वे. टेक योर टाइम. दोज हु आर सिटिंग नियर, डिस्कस करके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खासकर जो फेस टू फेस में बैठे हैं. 2026 का आपको रेवेन्यू बताना है. व्हाट विल बी द टोटल रेवेन्यू सेल्स ऑफ मारुति इन 2026. हिंट दे रहा हूं. हिंट ये है कि इट इज इजी, इट्स डूएबल. ओके, मेंटली बता दिया, इट्स डूएबल. तो एक मन में आता है सर बोल रहे डूएबल है, तो उस चीज से पॉजिटिविटी लो. हाई फाई होता तो मैं खुद ही बोल देता कुछ. इट्स डूएबल, बट थोड़ा सा इंगेज करना है अपने आप को. फेस टू फेस में है जो वो लोग, डिस्कस करो ना. इट्स बेटर इफ यू डिस्कस इट आउट. टोटल रेवेन्यू निकालना है P इंटू Q. टोटल रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी. प्राइस माने जो है एवरेज सेलिंग प्राइस है, ASP. क्वांटिटी माने जो टोटल वॉल्यूम है. जैसे 2025 का अगर निकालना होता, इट्स 2.12 इंटू 7.1. ओके, 2025 का इट इज 2.12 इंटू 7.1. आपको वैसे ही 2026 का निकालना है. अब इससे ज्यादा हिंट तो इट्स लाइक गिविंग द आंसर. टोटल सेल्स, ओके, नॉट इन वॉल्यूम, रुपया. तो वहां पे कई सारे आंसर्स आए हैं ऑन द लाइव बैच. 16, 25, 15, 68, 14.59, 17.06, सबका अलग अलग आ रहा है. वो एक फिगर लैक्स में है और एक फिगर मिलियंस में है. नहीं, रुपीस. हाँ, ये लैक्स में है, वो मिलियंस में है. थोड़ा सा संभालना पड़ेगा. फिगर्स जो है ना लैक्स और मिलियंस में है. तो अगर आपको मिलियंस में लेना है उसको 0.71 ले लेना. 0.71. ओके, या तो 2.12 को 21.2 ले लो. तो 21.2 इंटू 7.1, दैट वाज द सेल्स. ओके, थोड़ा सुधार के देना चाहिए था फिगर्स हम लोग को. 21.2 लाख से ही, एंड दिस इज 7.1 lakhs. This is what? Price. This is what? Quantity. So this was the total revenue, P into Q.
This was the total revenue. What is it coming to? 2025 में क्या था? वापस से बोलो. 150.52 lakhs. इनफैक्ट लैक्स को तो लैक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो बहुत बड़ा फिगर है वो. 21.2 lakhs है इंटू 7.1 lakhs है, तो इट इज लाइक 150.52 के बाद देयर आर 10 zeros. Okay, whatever it is, let's focus on the main number. So ऋषित मित्तल का और बहुत सारे जन का आंसर आ रहा है. जो आंसर आ रहा है दैट इज 1707.1950 lakhs. Okay, it's like करीब 17,000 crores. Okay, नहीं क्या बोलते हैं, कितना करोड़ हो गया ये? 1,70,000 करोड़ ना? नहीं, कितना? 17 lakhs 7,07,195 करोड़. ओके, व्हाटएवर. ठीक है, तो ये फिगर आ रहा है. ये इजी था निकालना इन द सेंस दैट जो क्वांटिटी है दैट विल गो अप बाय 8% एंड द प्राइस विल गो अप बाय व्हाट 5%. ना सीएफए इंस्टीट्यूट पे क्वेश्चन कैसा पूछता है सुन लेना इससे. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन ये पूछता है, ये नहीं पूछता है वो जो निकाले, दे डोंट आस्क दिस. दे विल आस्क यू व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ रेवेन्यू. व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ रेवेन्यू. फीलिंग 13% का आ रहा है. एक मिनट, मैंने बोला फीलिंग 13% का आ रहा है. ग्रोथ रेट ऑफ रेवेन्यू में फीलिंग 13% का आ रहा है क्या? 8% क्वांटिटी विल ग्रो, 5% प्राइस विल ग्रो. तो क्या 13% का फीलिंग इज कमिंग? बट एग्जैक्ट मैथ्स इज मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव. मल्टीप्लिकेटिव, which is factor into factor minus 1. 1.08 into 1.05, the whole thing minus 1. Please try. 1.08 into 1.05, the whole thing minus 1. 13.4%. 13.4% because revenue is P into Q ना. तो price is going up by 5%, quantity is going up by 8%. तो it's factor into factor minus 1. किसी ने बिल्डिंग ब्लॉक का भी क्लास अगर किया हो तो 1.08 into 1.05, the whole thing minus 1. 13.4% revenue will rise. Don't worry about the revenue का calculation because revenue नहीं पूछता है वो लोग पूछता है growth rate of revenue. और growth rate of revenue में ये वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है. ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए. ऑप्शंस में 13 दिया रहेगा, यहाँ पे आंसर 13.4 होगा. इजी तरीका है. 8 5 40.4 का इफेक्ट आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट. 13.4%. If this question gets repeated once again, I am hoping that subject write करेंगे in the multiple choice. Correct है? Let's check it out. कि आप write कर रहे हैं क्या? One second. Yes, please. What is the answer? What is the answer to this? Answer to this? तो bigger screen is required over here it seems. हाँ, last bench में difficulty हो रही है. Okay, sorry. Sir, 8.2%. वैसे तो 8.15 आ रहा है एग्जैक्ट, राउंडेड ऑफ टू 8.2. तो इस बार बोल रहा है वॉल्यूम ग्रोथ 5%, प्राइस ग्रोथ 3%. 5 + 3 8 and 5 3 15. 8.15%. 8.15% इज द ग्रोथ रेट ऑफ रेवेन्यू. ये सबसे इजी क्वेश्चन माना जाता है. आई टोल्ड यू ना, अगर 90 क्वेश्चंस यू विल हैव इन द एग्जाम इन वन सेशन, तो 90 में से देयर विल बी 10-12 questions which will be very very easy. This is one of them. If you do it right, not a great thing. If you do it wrong, तो in Bengali आस्ते बौछार आबार होबे. You understand?
माने रॉन्ग करने में दम चाहिए, राइट करने में कोई बात नहीं है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। यू कांट मेक दिस क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है ना। प्राइस और क्वांटिटी का इंपैक्ट, तो आई एम नॉट ओवर एम्फसाइजिंग, आई एम श्योर यू हैव गॉट द स्टफ, क्लियर है? ओके, आई होप यू विल बी एबल टू हैंडल नेगेटिव फिगर्स इन द सेंस दैट, बताइएगा if price is going to fall by 8% and quantity is going to rise by 12%, revenue पे impact, answer please. Price is going to fall by 8%. There is a lot of competition. We have to reduce the price in order to retain or gain more market share. The price is going to fall by 8%, quantity is going to rise by 12%. What will be the impact on revenue? So I'm getting the answer 3.04%. जिनका नहीं आया, please take some more 30 seconds, 60 seconds more. वहां पे सबका आ गया। प्राइस गिरेगा 8, क्वांटिटी बढ़ेगा 12, तो पहला फीलिंग है 4। पहला फीलिंग तो 4 ऐसे ही आ रहा है, 12 अप 8 डाउन 4। सेकंड फीलिंग है 4 के पास, पर क्या पता 4 पॉइंट समथिंग दिया रहे। अब बैठाएंगे आदमी, ओ जब माइनस होता है तो नीचे वाला, ये तरीका नहीं है। तो आई थिंक द मैथ्स इज टू इजी ओवर हियर। इट्स 0.92 into 1.12, the whole thing minus 1. Factor into factor minus 1. Factor means 1 plus r. Factor means 1 plus r. Obviously कोई चीज गिर रहा है तो r is negative, तो 1 rupee से नीचे हो जाता है। If the price was 1 rupee, it's becoming 92 paise. If the quantity was 1 unit, it's becoming 1.12 units. By every mathematical, non-mathematical, all explanation, you will have to acknowledge that सही है, easy है। 3.04%, सही है। अब इसको त्यागे अपने, ठीक है, ओके। तो ये मारुति का फोरकास्ट दिया हुआ है FY 26 में, 27 में, 28 में। 27 का व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ रेवेन्यू? 27 का ग्रोथ रेट ऑफ रेवेन्यू 7 हो जाए 28 करो ना, 0.28 क्या हो गया? 11.28। 28 का 6 3 जाए 18, 6 plus 3 9, 9.18। You're getting the rhythm, ठीक है ना? ओके, तो आई कैन सी द कॉन्फिडेंस फेस टू फेस बैच पे। जो लोग थोड़े पीछे बैठे हुए हैं, देयर कुड बी सम इश्यूज इन बीइंग एबल टू वॉच द स्क्रीन। आई जस्ट एक्नॉलेज्ड, ठीक है। आई हैव टू डू समथिंग अबाउट द साइज ऑफ द स्क्रीन सो दैट द प्रॉब्लम डजंट अराइज। ओके, सो आई होप यू आर विद अस। वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज अपने चैप्टर करे बिना टॉपिक में घुसे हैं, सो देयरफॉर देयर इज एन एंगेजमेंट इन्वॉल्वड। सो वी डिड दिस। यहाँ पहली बार डेटा आया रेवेन्यू का, रेवेन्यू स्केड्यूल बन सकता है इससे। इज दिस सेगमेंट फोरकास्टिंग? इज दिस सेगमेंट फोरकास्टिंग? नो, सेगमेंट के अंदर नहीं गए। मारुति के अलग अलग एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक अलग अलग नहीं। दे कुड हैव गिवन कि सर एक्सपोर्ट वॉल्यूम का ये ग्रोथ होगा, डोमेस्टिक का ये ग्रोथ होगा, ठीक है, या ये पर्टिकुलर ब्रांड का ये दाम बढ़ेगा, इसका ये दाम बढ़ेगा, कुछ नहीं दिया वैसा, ठीक है। दिस इज कंसोलिडेटेड फोरकास्टिंग। And since many of you are aware, is this bottom up forecasting or top down forecasting? Those who are not aware, they can apply their common sense. ये bottom up है कि top down है? Bottom up है। Top down का मतलब हुआ passenger vehicle market in India का total market size क्या है? Passenger vehicle market in India का total size क्या है? What is the total size? TAM, total addressable market। उसमें मारुति का शेयर क्या है? से 38%। आपको क्या लगता है नेक्स्ट ईयर टैम क्या होगा? ठीक है, और मारुति का शेयर क्या होगा? यू मल्टीप्लाई द मार्केट साइज इनटू मार्केट शेयर, मार्केट साइज इनटू मार्केट शेयर, दैट इज अ फोरकास्ट ऑफ रेवेन्यू। दैट्स कॉल्ड टॉप डाउन बिकॉज इट्स इकोनॉमी ओरिएंटेड। बॉटम अप P into Q, प्रोडक्ट वाइज P into Q, अंडरस्टूड? दिस टॉप डाउन बॉटम अप हैज बीन डन मोर इलैबोरेटली एंड मोर रुक के in different chapters। सबसे मेन तो कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट, कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट इनफैक्ट YouTube पे डाला हुआ है, ओके। मतलब इट वाज वंडरफुली टॉट। वी स्टार्टेड विद स्टारबक्स, वी वेंट इनटू conglomerates, ITC, अपोलो हॉस्पिटल एंड एवरी, हर जन का फोरकास्ट किया हुआ उसके अंदर, ठीक है। तो एंड इट वुड सीम लाइक अ स्टडी, यू विल नॉट फील लाइक स्टडी, पढ़ाई चल रही है, ओके। यू विल जस्ट अप्रोच इट फ्रॉम अ कॉमन सेंसिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट में। तो ये बॉटम अप फोरकास्टिंग है,
P इंटू क्यू के बेसिस पे। सिंप्लीफाइड इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट का जो अपने बात कर रहे थे वो पैट तक दिया हुआ है, 24 का 25 का रेवेन्यू, वंडरफुल ग्रोथ 1,25,000 से 1,50,000। COGS का उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। द फैक्ट दैट COGS का उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, दैट गोज टू शो दैट COGS के अंदर there is a substantial amount of dash component. Option number A fixed component, option number B variable component. सोच लो फिर से, आपको दिख रहा है रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा है 1,25,000 से 1,50,000, it's like 25 by 125 which is what 1/5, 20%, while COGS 1,03,000 से 1,22,000, 18 point something percent. So revenue has gone up by 25%, COGS gone up by 18%. Why? That's good वैसे, but why? Because COGS consists of some dash component which has not prevented, which has not allowed proportional increase. What is that? Fixed. COGS में सब fixed components है, तो fixed components को तो sales से मतलब नहीं है। Sales अगर double भी हो गया, if I have taken this room on rent, and in case more students join the room, although अभी space बचा नहीं है, but if more students join the room, in that case मेरा rent तो same लग रहा है, तो my revenue will go up, ठीक है? But my cost remains what? Same. Are you understanding? It's common sense. Once again discussed earlier at several places, but those who are doing even in the first class, they should be okay. Yes, समझ में आ रहा है. What is this called for those who have done the class earlier? Fixed cost का मजा enjoy करना, जब आपका धंधा बढ़ रहा है और fixed cost आपके लगता है, इसका मजा enjoy करने को क्या बोलते हैं? Anyone? जब आपका धंधा बढ़ रहा है, पर since आपके fixed cost है, आप उसका actual मस्ती enjoy कर पा रहे हो. What is it called? हाँ, जवाब आया ऑपरेटिंग लेवरेज। व्हाट? ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज मींस यू हैव फिक्स्ड कॉस्ट इन योर ऑपरेशंस, यू हैव रेंटेड फैसिलिटीज सच दैट इफ योर रेवेन्यू गोज अप, द रेंट डज नॉट गो अप, द डेप्रिसिएशन डज नॉट गो अप, and therefore your cost goes up slightly, revenue really goes up, and you are enjoying a huge increase in profit margin. That's called operating leverage. There could be technical definitions of operating leverage, but that's what the problem is. कि technical definitions के चक्कर में अपने उसको खोल के समझना ही भूल जाते हैं। तो the raw language which I used कि operating leverage का मतलब हुआ fixed cost का मजा उठाना। Believe me, wonderful way of understanding. कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा कि operating leverage का मतलब क्या है। And then you can go to various definitions. Operating leverage is the elasticity of EBIT with respect to Q. बस यही करते रहना। Okay, because when you will become fund manager, elasticity of EBIT कभी तुम नहीं बोलेगा. The समझ will help you कि fixed cost का मजा उठाना. Okay, तो ऑपरेटिंग लेवरेज ये कंपनी एंजॉय कर रहा है. कोई बोल रहा है समीर नवाज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. समीर नवाज has used the word trading on equity that is used in the context of financial leverage. Which leverage? Financial leverage मतलब अपने बिजनेस कर रहे हैं और उस पर डेट यूज कर रहे हैं. बिजनेस कर रहे हैं और उस पर डेट बोरोड फंड यूज कर रहे हैं बैलेंस शीट में. एंड अपना बिजनेस बहुत बढ़िया करता है, तो अब बिजनेस बढ़िया करता है तो डेट को तो उतना ही इंटरेस्ट पे करना है कि उसको खुशी के मारे और दे देंगे, देखो हम लोग कमाएं और ले लो, नहीं होगा ना वो तो उसको उतना ही पे करना है. तो हम लोग डेट का पैसा लगा के खुद का पैसा लगाए नहीं, डेट का पैसा लगाए, ज्यादा कमा लिया और पॉकेट कर लिए. दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. फाइनेंशियल लेवरेज. व्हाट लेवरेज? फाइनेंशियल लेवरेज. समझ गए? देयर कुड बी चैप्टर्स ऑफ लेवरेज इन बीकॉम I suppose और इन CA इंटर जिनमें 120 क्वेश्चन लेवरेज का कराएगा, 120 क्वेश्चन जैसे करते थे ना, करते जाओ हाँ चैंपियन हो गया और सीखा कुछ ही नहीं. एट द एंड ऑफ द डे ये भी नहीं सीखा जो मैंने बोला, तो सीखा क्या? ऑफ कोर्स कुछ ग्रेट होते हैं, ऑफ कोर्स CA में भी या बीकॉम में भी दे हैव दैट इंटेलेक्ट, डजंट मैटर कि दे टच CA और बीकॉम, बट दैट वे इन विच नॉलेज इज बीइंग ट्रांसमिटेड इज रियली bad as compared to what the future is. Anyways, gross profit का margin please निकालिएगा. 31.7. Others please, gross profit margin. Gross profit margin means gross profit is what percentage of sales? Gross profit is what percentage of sales? I am making an English language statement which does not require any formula. 28,000 1,50,000 का कितना percentage? 28,000. 28 by 150 into 100. What is it? Yes? 18.6.
18.67%. That is in 2025. GP margin. GP margin. कोई भी GP margin को अगर फॉर्मूला पकड़ेगा ना, GP margin equal to GP by sales into 100. And then I'm really sorry for what I'm going to speak. ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ रेशियोज का आपके कॉपी में, और आप ऐसे घर पे पढ़ रहे हैं, and then you're walking down the corridor and learning GP by sales into 100, this debt by equity into 100. अरे ऐसा पढ़ाई भी सबने किया है, सबको याद होगा, और मम्मी लोग को ये पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है. They really feel that अब पढ़ाई हो रहा है. प्लीज काश ऐसा नहीं हो. It shouldn't happen that way. ठीक है. तो GP margin is gross profit कितना कमा रहे हैं सेल्स से. तो it is 18.67%. What was it last year? What was it last year? I'm just trying to engage you more and more. We are connected? 17%. Our gross profit margin has improved. How do I tell you? जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं ना, जैसे मार्केट चल रहा है, अभी मार्केट चल रहा है फ्राइडे, और अभी अगर मार्केट चलते के बीच में एक रिजल्ट अनाउंस हुआ है कंपनी का, क्वार्टरली रिजल्ट, और उसमें कंसेंसस स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस था कि जीपी मार्जिन जो है, आपने क्या बोला 24 में क्या था 17, कि जीपी मार्जिन 17.7% आएगा, 17.7% आएगा. और अगर वो 18.67% आ जाए स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले अराउंड 80 बेसिस पॉइंट अप, द स्टॉक विल बी ऑन फायर. तो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द करोड़ों रुपया का implications on it, I am not able to explain to you. This is not decimal going on. ठीक है. Whatever the market is expecting, if the GP margin, okay, can be 30, 40, 50 basis point higher, the stock will just go up. So सही कैसे पता चले? That पता चले, वैसे तो विष्णु जी को पता है, भगवान को, बट अपने को पता चलने का है कि आपने कितना डीप एनालिसिस किया है. There are people who are hired in firms only for the purpose of result based trading. Which trading? Result based trading. कैलकाटा बेस्ड फर्म है, क्या नाम है उसका, VT कैपिटल. ओके, तो VT कैपिटल में रिजल्ट्स के बेसिस पे ट्रेडिंग करने के लिए यहां से, इसी सेंटर से, देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग ओवर देयर. ओके, रिजल्ट्स बेस्ड ट्रेडिंग, उनका काम है स्ट्रीट के मुकाबले क्या डिफरेंशियल आने वाला है वो फोरकास्ट करना, एंड उसके बेसिस पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या ट्रेडिंग लिया रहता पोजीशन, एंड अकॉर्डिंगली उनका बोनस उनस सब उस पर डिपेंडेंट है. अंडरस्टूड? तो जब बोनस उस पर डिपेंडेंट है, देन इंसेंटिव सिस्टम्स आर इन प्लेस. तुमको पता है तुम्हारा सारा पैसा वगैरह उस पर डिपेंडेंट है. यू अप्लाई और होल लॉट ऑफ, अभी जो ब्रेन लग रहा है तुम लोग का बैठे हुए, कोई ब्रेन का लेवल ही नहीं है. जब वहां मनी बिकम्स एट स्टेक ना, तब जो दिमाग भागता है ना, दैट्स लाइक क्या बोले, न्यूटन से भी तेज, दैट वे. So this is very very important. If you feel like I am wasting time 17 से 18.67, no, this is important. GP margin, ठीक है. SG&A का बात हुआ था अपना. SG&A में क्या लगता है? सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. एक बार फील अबाउट इट. सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव. मेरे को स्टाफ सैलरी टाइप लग रहा है कि ऑफिस में जो काम करते हैं लोग. जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फील इट. ये भी गया, कोई बात नहीं, मैं लाउडली बोल रहा हूँ. एंड दूसरा है योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फैक्ट्री का फीलिंग आ रहा है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर दोनों का फीलिंग ठीक से ले रहे हो जेन्युइनली, तो बता पाओगे दोनों में से किस में फिक्स्ड कंपोनेंट ज्यादा होता होगा. SG&A. सेलिंग के कारण थोड़ा बहुत लग सकता है ऐसा, सेलिंग एक्सपेंस में बोनस होता होगा, बट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव तो पूरा फिक्स्ड होता है. और जब मैं फिक्स्ड बोल रहा हूं तो डू आई मीन टू से फिक्स्ड कॉस्ट माने वो जो चेंज नहीं होगा? रॉन्ग डेफिनेशन. फिक्स्ड कॉस्ट का डेफिनेशन ये नहीं है कि वो जो चेंज नहीं होगा, वो भी तो चेंज होगा. रेंट तो बढ़ता ही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, रेंट अग्रीमेंट. सैलरी तो बढ़ता ही है स्टाफ का हर साल, विच हैज नो कनेक्शन विद सेल्स, विच हैज नो कनेक्शन विद सेल्स. दैट्स द फिक्स्ड कॉस्ट. तो SG&A में बहुत सारा कंपोनेंट फिक्स्ड होता है. मे बी 75% इज फिक्स्ड, 25% वेरिएबल. मन से बोल रहा हूं. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 75% वेरिएबल, 25% फिक्स्ड. यू अंडरस्टूड? तो इसलिए जो ऑपरेटिंग लेवरेज है, इट इज प्रोवाइडेड मोर बाय होम, SG&A. ऑपरेटिंग लेवरेज का मेन किकर इज व्हाट? SG&A एज कंपेयर टू COGS. ये जो मैं यहां बोल रहा हूं ना, इट मे सीन दैट आप बोल के निकल रहे हैं, पहला तो नोट्स पे रहेगा. दूसरा बात है, ये दूसरे चैप्टर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होके कराया हुआ है, रुक रुक के.
अब वो उतना क्लास जो वहाँ दिया हुआ, अगर वो क्लास वापस यहाँ दें, दैट वुड बी वेरी वेरी ग्रॉस वेस्टेज ऑफ आवर टाइम. ठीक है, तो यू नीड टू गिव मी द बेनिफिट ऑफ डाउट कि सर in the company analysis past and present chapter, in the business model chapter, this has been done really time spent करके. समझ गए? EBITDA, बात हुआ था EBITDA का. Depreciation 3000 से 3500. Depreciation increase करने के कारण, आंसर बताना है आपको. Depreciation increase करने के रीजन से what will be the effect on CFO ऑपरेटिंग कैश फ्लो में क्या इफेक्ट होगा ड्यू टू इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन? ऑप्शन नंबर ए, इट विल फॉल. ऑप्शन नंबर बी, इट विल रिमेन द सेम. ऑप्शन नंबर सी, इट विल राइज. इट विल रिमेन द सेम. डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम. कोई स्टूडेंट जिसका कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से किया हुआ है, मे बी 11-12 में और मे बी CFA में, मे बी BCom में भी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट को याद आएगा, नहीं सर हम लोग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उस पर तो प्रॉफिट लेते हैं, उसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं. उसका डाउट है क्या? सुन लेना, मैं खुद ही डाउट क्रिएट कर रहा हूं कि द प्रॉफिट वी टेक फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट देन वी ऐड डेप्रिसिएशन. तो इफ वी ऐड मोर डेप्रिसिएशन CFO विल गो अप. आर यू अंडरस्टैंडिंग द डाउट? एंड सिंस मैं खुद डाउट क्रिएट कर रहा हूं, आई एम नॉट वांटिंग किसी को मेरे को टेलीग्राम पे डाउट भेजने के लिए. दैट्स वेरी बैड. मैं खुद डाउट को क्लियर करने वाला हूं कि प्रॉफिट में भी ऐड डेप्रिसिएशन, तो सर फिर तो CFO बढ़ना चाहिए. प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ है. क्या किया हुआ है? लेस. बाद में आप उसको ऐड कर रहे हैं, उसका तो इफेक्ट नलिफाइड हो गया, आपको वो दिख रहा नहीं है. तो जाहिर है लेस ऐड, ज्यादा करते ज्यादा लेस ऐड होता. इट्स इररिलेवेंट एंड दैट इज व्हाई आई प्रेफर द डायरेक्ट मेथड ऑफ CFO. हम निकालेंगे नहीं प्रॉफिट से CFO. कैश कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स, कैश पेड टू सप्लायर्स, कैश पेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव, कैश पेड फॉर इंटरेस्ट, इससे CFO निकालेंगे. तब तो देखो डेप्रिसिएशन काम ही नहीं आएगा. तो डेप्रिसिएशन का इंक्रीज विल नॉट अफेक्ट CFO. वंस अगेन टेस्टेबल क्वेश्चन हर जगह CFA करिकुलम में. ठीक है ना? इंटरेस्ट 500 से 600 हो रहा है. PBT, वैसे इंटरेस्ट शुड इट बी फोरकास्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ डेट आउटस्टैंडिंग और शुड इट बी फोरकास्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स? इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या लगता है? इंटरेस्ट जो एक कंपनी देता है, दैट शुड बी फोरकास्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के बेसिस पे या फोरकास्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट? आउटस्टैंडिंग डेट. इट हैज टू बी इंटरेस्ट रेट अप्लाइड ऑन द डेट, कि जो बैलेंस शीट में डेट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, एक्स्ट्रा डेट लेंगे उस पर भी लगेगा. वैसे ही जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन दैट शुड बी फोरकास्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स और फोरकास्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, द फिक्स्ड एसेट्स इन आवर बुक्स, उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन फोरकास्ट होगा. एंड अगर आप देखेंगे, रुके जैसे मैं रुक रहा हूं, देख रहे हो कैसे रुक रहा हूं, रुकेंगे ना, यू विल फाइंड दैट जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसका 10 टाइम्स आप जान जाएंगे. एंड प्लस आपको बोरिंग नहीं लगेगा, यू विल नॉट फील बोर्ड आउट ऑफ इट. ठीक है, यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस ऑफ स्टॉप. ठीक है, एंड इसी को खो दे, बिकॉज प्रैक्टिकल अपना स्ट्रेंथ होता है यूजुअली इंडियंस का, तो वी हैव टू यूज दैट. सर ये सेम स्टफ बुक पे लिखा हुआ है क्या? 100% लिखा हुआ है, कोई डाउट ही नहीं है. बट देन दे हैव स्टार्टेड ऑल दैट लैंग्वेज ओरिएंटेड which sets us to sleep, and there we become conscious of the language that they are using, कि मेरे को लैंग्वेज का भी अपना मैच करना है, उस लेवल का लैंग्वेज आए, कोई सेंस ही नहीं है. ठीक है, ओके. टैक्स 25% एज्यूम किया है और आ गया पैट. ठीक. मॉडलिंग इनपुट्स, मॉडलिंग हिंट्स. ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव ड्यू टू प्राइस मिक्स. प्राइस मिक्स के बारे में मैंने बोला था क्या? मारुति स्टार्टेड सेलिंग दोज कार्स वेयर द प्राइस वाज व्हाट हायर, दैट इज व्हाई इट्स मिक्स इंप्रूव्ड. ऑपरेटिंग लेवरेज, आई स्पोक अबाउट इट. इनपुट मॉडरेशन, डिड वी स्पीक अबाउट इनपुट मॉडरेशन? यस. स्टील एल्यूमिनियम का प्राइसेस बात किए थे ना. तो हर एक चीज का आपको हिंट मिल रहा है, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड. डेप्रिसिएशन राइजेस विद कैपेक्स. ठीक है, बात हुआ तो ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा. एग्जिबिट सी, वर्किंग कैपिटल. एक बार इतना ले नहीं पाएंगे, इसको एक बार इग्नोर कर रहा हूं. ओके, एक बार उसको इग्नोर किया मैंने. क्वेश्चन ये तो हो चुका. गिवन द FY26 वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 8%, प्राइस मिक्स ऑफ 5%, ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ इज 13.4%.
FY25 revenue 1,50,000 crores. Then forecast for 26 is, ये तो टाइम पास क्वेश्चन है, 1,50,000 प्लस क्या था 13.4%. What is it coming to? 1,50,000 into 1.134. 1,50,000 into 1.134. 1,50,000 into 1.134. 1,70,100. ठीक है, that was hardly a question. Compute the margin, शायद अपने निकाले थे margin. FY25 में it was 18.67 gross profit by sales. Compute the EBIT margin. EBIT is often called operating profit. So we call it operating profit margin. What? Operating profit margin. तो operating profit margin अपना क्या है? What is the operating profit margin 2025 में? %10 से तो कम है, because 15,000 से कम. $7.875 नहीं, मन से बोल रहा हूँ. हाँ वो तो डेसिमल प्लेस किया, मेरे को लग रहा है 7.825 आ रहा है. हाँ 7.825% it is coming, 7.83% in 2 decimal. 7.8% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. लास्ट ईयर का भी चेक किया जा सकता है. ठीक है, ये पार्ट मेरे क्वेश्चन नंबर 5 का वाला पार्ट कराया नहीं. ओके, वेट करते हैं यहाँ पे 1 मिनट, बिकॉज वो पार्ट कराने के पहले लीव द स्क्रीन, लिसन टू माई नंबर्स एंड प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग. नंबर्स सुनना एंड रिप्लाई करने की कोशिश करना. मैं नंबर्स ऐसा बोलूँगा जो नंबर्स मोस्टली आप वर्बली भी शायद रिप्लाई कर पाओगे. ठीक है, लेट्स चेक. कंपनी का सेल्स 720 करोड़ होने वाला है. कितना? 720 करोड़ सेल्स होने वाला है. और कंपनी का डेटर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल यूजुअली अटका रहता है ऑन एन एवरेज फॉर 45 डेज. सेल्स तो पूरे साल का है ना, और उस पर जो डेटर्स है ना, जिनसे पैसा कलेक्ट करते हैं, 45 डेज का पैसा लटका हुआ रहता है हमेशा उनसे. व्हाट इज द डेटर्स का अमाउंट अज्यूमिंग 360 डेज इन अ ईयर? 720 करोड़ का सेल्स है, ठीक है, पूरे साल का. 45 डेज का सेल्स अटका हुआ रहता है, ठीक है, 360 डेज इन अ ईयर. व्हाट इज द डेटर्स? 90 करोड़. बहुत जन बोल रहे हैं वहां पे भी 90 करोड़ का आंसर आया है. बहुत जन वापस सुन ले, मैं फिगर्स लिख भी दे रहा हूं बोर्ड पे, पर कॉपी करने का जरूरत नहीं है. आई सेड जो सेल्स है दैट इज 720 करोड़. आई सेड द डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, इट्स कॉल्ड DSO. ओके, इट्स एक्चुअली कॉलिंग डेटर्स पीरियड. डेटर्स पीरियड 45 days. 45 days. And you are supposed to assume 360 days in a year just for convenience. I am not saying अपने को आंसर्स में 360 मानना है, मेरे कंफर्टेबल कन्वर्सेशन में. तो इन दैट केस व्हाट इज द डेटर्स? 90 करोड़. सबसे इंपॉर्टेंट है, काश फॉर्मूला नहीं लगाना पड़े. वी आर अगेंस्ट फॉर्मूलाज. ओके, डेटर्स क्या होता है? सेल्स ही तो होता है. इफ यू ठीक से थिंक, डेटर्स तो सेल किया हुआ ही तो माल है. डेटर्स मीन सेल्स, बट इंस्टेड ऑफ साल का इट्स 45 डेज का. तो ये तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हो गया कि अगर 360 डेज का 720 है तो 45 डेज का कितना, या पर डे सेल्स आपका 2 करोड़ होता है, 720 बाई 360 2 करोड़ का सेल्स होता है, तो 45 डेज का कितना? 90 करोड़. फील द नंबर्स. ऑफकोर्स सर वहां पे गंदे नंबर्स आएंगे, पर उसके लिए तो कैलसी है ना. चीज का सिंप्लिसिटी तो समझें. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर ऐसा है तो सपोज लेट्स थिंक दिस वे, ये नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है, और आपको डेटर्स दिया हुआ है अकाउंट्स रिसीवेबल 90 करोड़. तो जाहिर है क्वेश्चन क्या पूछेगा? DSO. बोलेगा डेटर्स 90 करोड़ है तो बता DSO क्या है. तो यू विल सी 90 करोड़ 720 का क्या परसेंटेज है, और उसको 360 पे लगा दो.
90 करोड़ 720 का क्या परसेंटेज है, उसको 360 डेज पे लगा दो, हो गया काम तुम्हारा। करो 90 डिवाइड बाय 720, द होल इनटू 360, 45 days. And I can't imagine how is it a formula. Okay, it is not a formula at all. I hope you are comfortable. The screen is not visible, दिखाओ। सॉरी स्क्रीन विजिबल नहीं था, रियली सॉरी। ये फिगर्स था, सेल 720 था, इनिशियली DSO was 45 days and you were supposed to find out debtors, so that you found out and then I gave the debtors और उसके बाद आपको DSO निकालना था। अब क्या है ना, सेम चीज वापस से पूछूंगा तो मोनोटोनस और खराब लगता है। क्लास में अच्छा कब लगता है, जब नंबर 1 समझ में आए, पर नंबर 2 चोमू चीज नहीं हो। इट शुडंट बी सच अ माने रेकलेस थिंग दैट फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। देयर शुड बी सम माइंड एप्लीकेशन एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू रियली लाइक इट। ओके, सो देयरफॉर वी ट्राई टू गो हिदर एंड दिदर विच सीम टू बी रैंडम, कि एक प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट इट विल कम टू बिकम अंडरस्टैंडेबल। तो मैं इसका रिलेटेड स्टफ से खेल रहा हूं। आई एम वांटिंग योर आंसर, बोलना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 540 करोड़ से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 540 करोड़ से, एंड डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड, डेज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पीरियड इज 30 days. गिव मी द इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 540 करोड़ है, पूरे साल का जो माल खरीदा, रॉ मटेरियल वगैरह, बट पे करते नहीं, वो लोग उधार में खरीदते हैं। तो जो सप्लायर्स लोग हैं वो 30 दिन का अटका हुआ रहता है। तो जो सप्लायर 30 दिन का अटका हुआ रहता है, तो आपको 30 डेज का 540 बताना है। 540 तो 360 डेज का है, तो आपको 30 डेज का बताना है। आंसर इज व्हाट, 45 करोड़। इसका सोचने का तरीका क्या होगा कि सर ने ये बोला कि सेल्स एंड डेटर्स आर सेम, बेसिकली सर ये बोल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री इज व्हाट, सेम। इट्स जस्ट द फैक्ट दैट वन इज अ फ्लो वेरिएबल, पूरे के पूरे साल का है फ्लो वेरिएबल, द अदर इज अ स्टॉक वेरिएबल, ओके, बैलेंस शीट का है। इट्स जस्ट द टाइम पीरियड पर्सपेक्टिव। वंस यू गेट इट, दीज आर नॉट फॉर्मूलास। जाहिर है अकाउंट्स पेएबल को किससे कनेक्ट करेंगे? अकाउंट्स पेएबल तो क्रेडिटर्स होता है, पूछ रहे क्रेडिटर्स को किससे कनेक्ट करेंगे? जैसे डेटर्स को कनेक्ट किए अपने सेल्स से, जैसे अपने इन्वेंट्री को कनेक्ट किए COGS से, अकाउंट्स पेएबल को किससे कनेक्ट करेंगे? तो एकदम टेक्निकली करेक्ट आंसर था परचेजेस, और वो भी कोई बोलेगा क्रेडिट परचेजेस, बट अगर वो नहीं है तो उसका भाई क्या है? COGS। उसका भाई क्या है? COGS। यानी अकाउंट्स पेएबल शुड बी कनेक्टेड टू परचेजेस, बट बिलीव मी एट वेरी हाई लेवल। मतलब आई एम ट्राइंग टू से दैट व्हाट इज लो लेवल, बता दे पहले। अगर एक 1000 करोड़ कंपनी है, कौन सी कंपनी? 1000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी है, तुमको पता है उस कंपनी को कोई पूछता नहीं है। No ICICI Securities, no Jefferies, no Motilal Oswal will care to study that company and bring a report on it, understand the औकात of that company. समझ गए? तो और ये जो छोटी छोटी कंपनीज होती है ना, 1000 करोड़ 1200 करोड़, उनमें कोई ना कोई होता है ना तारे जमीन पे, वो मिलता है। बट जाहिर है जमीन पे सारे पेबल्स बिछे हुए हैं, उनमें से तारे मिलते हैं, पर वो खोजना पड़ता है। ठीक है? तो एंड दैट इज व्हाई इक्विटी मार्केट्स इन इंडिया हैव बीन एंड स्टिल आर एंड विल बी ग्रेट कंपाउंडर, okay, for at least a decade, because the MSME sector is just starting to perform. I know the small cap index in India over the last 1 year has been the worst performing index in the globe. In case you are aware, the small cap index in India is the worst performer, but that's an opportunity. Somebody starting a fund right now. Somebody starting a fund right now. Like we are in the process of applying for an AIF right now. And the other day I was
रात को बात कर रहा था टू द अदर पर्सन, ओके, दैट ये opportune time है, we should not delay because the cycle is very important. If you start a fund at a time when the markets are really low, that means you enjoy the cycle of अपना together with the selection skills and other skills. तो ये जो 1000 करोड़ वगैरह की कंपनी, उनको पकड़ के आप क्या एनालाइज करोगे? यही तो देखोगे उसका कि उसका वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी क्या है. फिर से देखते हैं यहाँ पे, इसका 30 डेज है, इसका 30 डेज है. सपोज ये सीमेंट कंपनी है, 30 दिन इसका इन्वेंट्री अटका हुआ रहता है, और दूसरे कंपनी का 18 दिन है. वो तो वहां बैटल जीत गया, बिकॉज अगर 18 दिन होता तो व्हाट वाज द इन्वेंट्री? आपने 45 करोड़ बोला था. अगर 18 दिन होता तो व्हाट इज द इन्वेंट्री? यस प्लीज, 18 डेज का इन्वेंट्री. बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव लाओ यार, कैल्सी यूज करो. क्या 27 करोड़. ये जो डिफरेंस है 45 माइनस 27 कितना? हाँ 18 करोड़. 18 करोड़ पे जो इंटरेस्ट रेट है, सपोज मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट 12%. 18 करोड़ पे जो इंटरेस्ट रेट है 12%, व्हाट इज इट? 18 करोड़ पे 12% इज व्हाट? 2.16 करोड़. तो ये जो स्मॉल कैप कंपनी है, ये प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा होगा अराउंड 10-12 करोड़, और 10-12 करोड़ में 2.16 करोड़ अगर ये बचा रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दैट्स अ सुपर्ब थिंग. ठीक है, स्मॉल कंपनी है, वो 12-14 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है और वो 2.16 करोड़ बचा ले रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कारण. और आप क्या सीखेंगे? ईओक्यू. ईओक्यू तो पढ़ाते हैं ना शायद, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. बहुत जन सीए में तो, ये बीकॉम में भी होता होगा मेरे ख्याल से. ईओक्यू, और वो सीखते जाएंगे उसका 4 सम, 10 सम, 15 सम. वेर आर वी? मतलब एकदम मैंने जो क्लास होती है उससे फायदा क्या होता है? व्हेन देयर इज अ वेबिनार और सेमिनार विद आउटसाइडर्स, यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट दैट मच इन हाफ एन आवर, 1 आवर, बट एटलीस्ट यू पीपल शुड अंडरस्टैंड. मेहनत जितना करना उतना करना ही है, तो भाई सही डायरेक्शन में करें ना मेहनत, जहां पे पैसा कमाई का स्कोप है, दैट वे. सो हाँ, अकाउंट्स पेबल को परचेजेस से, पर परचेजेस जो है ना वो नॉर्मली दिया नहीं रहेगा. तो सीओजीएस उसका भाई हो गया. किस भाई क्या हो गया? सीओजीएस. तो अकाउंट्स पेबल को भी सीओजीएस से लिंक करना पड़ेगा. ठीक है ना. इक्विटी इज नॉट अबाउट प्रेसिशन, इक्विटी इज अबाउट इनसाइट एंड प्रोसेस. यानी आपका डेसिमल प्लेस तक राइट है क्या? सर 16.7 नहीं 16.67? नो, 16 ही चलेगा, 15 भी चलेगा हमारा. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप किस प्रोसेस से सोच रहे हो. तो अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल समझ में आया? देखते हैं क्या समझ में आया. लेट्स कम टू द क्वेश्चंस. फॉर्मूला के बिना किए अपने. क्वेश्चन नंबर 5. It is 12:30. This is the last tries from our side. We want people to leave with a sense of this thing. Yes, समझ में आया था. Compute FY25 DSO. डेज निकालना है आपको. रिसीवेबल का डेज कितना है? अकाउंट रिसीवेबल 8,200 है, रेवेन्यू 1,50,000 है. डेज निकालना है. डेज, हाउ मेनी डेज? 8,200 represents how many days? एंड ऑब्वियसली आप मेरे ख्याल से 365 से आंसर मैच हो रहा है कि 360? 20 डेज. देखते हैं सॉल्यूशन में क्या चीज से निकाला है लोग, 365 या 360. वैसे एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसकी वजह से आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. 365 और 360 की वजह से आंसर रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है, ये बात श्योर है. 20 डेज आ रहा है स्टूडेंट्स का. तरीका याद है? तरीका है सर 8200, उसी का तो डेज निकालना है. तो 8200 सेल्स का क्या फ्रैक्शन है इंटू 360? बिकॉज जो रेवेन्यू है 1,50,000, दैट इज 360 डेज. तो 8200 इज हाउ मेनी डेज? दैट्स इट. द फ्रैक्शन इंटू 360, 20 डेज. फाइन विथ यू? यू आस्क योर फ्रेंड्स. बाई चांस कोई है, बाद में देखेंगे जब आप क्लास में बीकॉम में पढ़ते रहेंगे, दे विल टीच यू व्हाट आई एम टेलिंग यू. They will teach you this. Let me try. अगर मैं कर पाऊं तो.
days sales outstanding equal to 365 divided by inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio is equal to COGS divided by average inventory. तो पहले तुम ये निकालेगा, फिर तुम यहाँ पुट करेगा, फिर तुम डिवाइड करेगा, फिर ये निकालेगा, फिर तुम सोचेगा वाह क्या किए हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक योर टाइम, आओ जोश में. इन्वेंट्री का पीरियड निकालना है. इन्वेंट्री का पीरियड, इन्वेंट्री का अमाउंट दिया, उसका पीरियड निकालना है. $13,700 डिवाइड बाय 1,22,000 इंटू 360. अभी एक चीज लोग क्या कर रहे थे बैठे हुए, मेरे को जो दिख रहा था आंखों में, नजरों में क्या दिख रहा था बताएं? छोटा वाला फिगर बाय बड़ा वाला फिगर इंटू 360. दिस वाज हैपनिंग. नाउ अभी के लिए इट्स ओके. प्रॉब्लम क्या है ना, आपको इतना क्लीनली दोनों फिगर्स दिया हुआ है, दो ही फिगर्स के साथ खेलना है. यू आर एंजॉइंग द मस्ती. व्हेन यू आर गिवन बहुत सारा फिगर ना, छोटा छोटा बड़ा बड़ा बीच का, यू अंडरस्टूड, सब चेक हो जाएगा. इफ यू हैव एंजॉयड दैट वे, तो देयर विल बी अ सफरिंग लेटर ऑन, बिकॉज इतना क्लीन देगा नहीं जो यहाँ चल रहा है. ये भी निकाल ही दो. क्रेडिटर्स पीरियड, डीपीओ माने डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग. डेज पेएबल, डीपीओ. आप लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स पीरियड 50 डेज. ठीक है, ये दो चैप्टर्स में आपको दिखेगा. मैंने बहुत ज़्यादा, जैसे अभी हो सकता है मैंने केवल 7 मिनट 10 मिनट स्पेंड किया, पर दो और अपने और स्पेंड करेंगे इन आने वाला क्लासेस. बट दो चैप्टर्स में मैंने बहुत बढ़िया से कराया था. कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट एंड बिजनेस मॉडल, दोनों में. आई हैव डन दिस वेरी मार्वेलसली ट्वाइस. दिस इज द थर्ड टाइम वी आर डूइंग इट. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 4 बार सेम चीज. ठीक है, ओके. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन टुडे. ऑफ कोर्स जिनका फर्स्ट क्लास हुआ है, फुल स्क्रीन प्लीज, जिनका फर्स्ट क्लास है, there is a time that it takes to understand the pattern of teaching of a particular person, especially if the person teaches very differently. Okay, I hope you will take it in correct perspective. First motive is exam clearance, second motive and the higher motive is your stupendous career. ठीक है, we meet on Monday for the next class. It may so happen that in between या फिर मंडे के बाद कहीं बीच में एक एक्सेल का क्लास होगा, जिसमें वो वाला पार्ट दिखा देंगे, एआई से वगैरह वो वाला पार्ट, पर वो एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा. somebody wants to skip, they can skip. ठीक है, या